Some news just coming in. Tension is simmering across Murshidabad district in Bengal, where the protest is ongoing against Nupur Sharma. It continues in Murshidabad. Heavy police deployment across areas in West Bengal. This is a big backlash as far as the controversial statements of Nupur Sharma is concerned. Indrajit has more details on that story. Indrajit, in fact, we've been reporting on arrest from Murshidabad, but it does appear that tensions haven't really died down. There are protests once again. What more can you tell us? Well, Sneha, over the past 48 hours, tension has spilled across in various parts of West Bengal. It all started in Howrah district, especially in Howrah rural areas over the past 48 hours, and now it has spread to areas like Murshidabad districts in Rajinagar, in Beldana. Or yesterday, we got reports that in the past 48 hours, there have been a store painting at police, and the national highway had been blocked, the one connection between North and South Bengal. When police tried to disperse the crowd, the protesting crowd who were blocking the national highway, they were pelted with stones. Now, heavy deployment of police has been made in those areas, not just Howrah, but even in specific pockets of Murshidabad district. Section 144 has been clamped, which means there is complete prohibition on gathering of more than 5 people. Also, internet services has been suspended in all these areas. The police commissioner of Howrah has also been, transferred. So Howrah now has a new police commissioner, Praveen Tripathi, who took charge yesterday. This morning, he went around the area and he said things are in control. Fresh incidents of violence, and more than 50 people have been arrested in Howrah in connection to violence and arson. All right, Indrajit, I'm thanking you for the moment. I'm going straight to my colleague Abhishek Mishra, who's getting us the very latest from Prayagraj. Remember, bulldozers have now started to roll in, is what we've been given to understand. Abhishek, give us an idea of the current situation as far as the house of the key accused Javed is concerned. The police had given an indication that they're going to bulldoze the illegal property down. What's really happening right now? These are pictures, in fact, from Prayagraj in UP. We'll just go across to Abhishek Mishra, where there is police bandobast and the police presence has been increased in this area. Remember, Javed Mohammed is the key accused. There was violence in Prayagraj on Friday, where stone pelting also took place. These are pictures, in fact, from the 10th of June. I'll just go across to Abhishek Mishra also for more on that story. He's standing by. Right now, he's right outside the house of Javed, who is the key accused in this case and currently is behind bars. The police had indicated earlier that strict action is going to be taken against the accused, including bulldozing their illegal properties, for which warnings have been given. That bulldozing was supposed to happen at 11 o'clock today, but right now, in fact, there is increased police presence right outside the house of Javed Mohammed. Abhishek has more details on that. Abhishek, tell us the latest. How heavy security has come here now. It's 12:20 in the afternoon, and now it's about time to take action against Javed Mohammed, who is the main accused of the Prayagraj violence. 11 a.m. was the time given to them to vacate the house. Nobody, turned out here, and now you can see how many security persons are there. A heavy security, including the forces, along with the women personals who are also there. Now, the PDA will start the action by getting this house
vacate, and if nothing happened, then the bulldozer will come and will take the action. It is very clear, Sneha, with the fact that it was intimated through the notice that 11 a.m. was the time to vacate, but nobody from the house came outside. We have been here from the morning, no movement as of now. But now, after the police force and personnel have arrived here in heavy numbers, look at their numbers. I'll show you throughout this whole, premises. You can see a big number of police personnel are there, who are ready with their lathis, with all those protection which is required if there any sort of resentment, any sort of protest or any sort of violation as far as concerned. But now it's time for the action. For security persons are there. Sir, आप लोग पूरी security के साथ में कब तक please कब तक करने की उम्मीद? अरे आप You can see that SP City is here and he is making the announcement. So clear now, Sneha, that action will be taken now. Anytime they can start with the action which was said as far as demolition of this house is concerned. All right. You know, Abhishek, give us an idea about whether previous warnings had been given to Javed Mohammed or not. Or was this warning only given after his name cropped up during the investigations as far as the riots in Prayagraj, as far as the ruckus and tensions created in Prayagraj is concerned? Well, absolutely, Sneha. And Javed Mohammed has been said by the police that he's the main accused person who was responsible for spreading the violence as far as the social media and, through which the WhatsApp chat which have been recovered and his linkages. Now, let's again show you the visuals here. The police is trying to enter the house. They are knocking the door, asking someone should come out. But so far you can see that nobody is coming. So it is very clear. And with the fact that किस तरीके से ये पूरी जो कार्रवाई है वो इस वक्त की जा रही है और आप देख सकते हैं अपने तस्वीरों में एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद है, लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि फोर्स को आगे किया जाए और दरवाजा खटखटाया जा रहा है, बाहर बुलाया जा रहा है, ताकि जिस तरीके की बात कही गई थी, जिस तरीके से कहा गया था कि ये कार्रवाई की जाएगी, नोटिस चस्पा किया गया था, उस नोटिस की अवहेलना हुई है। 24 तारीख का समय दिया गया था सुनवाई के लिए, बताया गया कि कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद 9 जून का समय था, तब तक आप अपने इस घर को खुद से ध्वस्त कर लें, खाली कर लें, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। और इसके बाद में जब कल ये नोटिस चस्पा हुआ रात में, उसके बाद में आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल स्थिति है। आपको मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, पूरी ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आशियाना करेली इलाका है और आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्स को बुलाया गया है, जो पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर किसी तरीके का विरोध होता है, अगर किसी तरीके से यहाँ पर अब इस कार्रवाई को लेकर के कोई बीच में आएगा तो उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। 11 बजे का समय दिया गया था कि खुद से इस घर को खाली कर लिया जाए, लेकिन सुबह से हमारे यहाँ चहलकदमी थी, कोई बाहर नहीं निकला। और अब जब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एसपी सिटी मौजूद है और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, तो साफ तौर पर यह अब साफ हो गया है कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ जो कार्रवाई की बात कही गई थी, इस मकान को बताया गया कि भूतल और पहले तल की परमिशन नहीं है और इसके चलते अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम है वो किया जाएगा, जिसके लिए भारी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और अब से किसी भी समय में ये कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जी Abhishek is getting us all of those details from the location. Remember, viewers, this is the same place where the key accused in the riots that took place after the Friday prayers, Javed Mohammed, stays. Abhishek, tell our viewers a little more about who this man is. Is he somebody with a criminal past? What more details can you share with us about him? Well, absolutely, as far as Javed is concerned, Javed basically is a person who began his work of doing this pump work. So his name is also known as Javed Pump. Now, also it is very important that he's also politically associated with Welfare Party of India. He was the State General Secretary and currently is one of the member of the National Executive Committee of this party. So that is the political connection there. Now,
नाउ, बट जिस तरीके से हम ये भी देख भी सकते हैं कि खास तौर पे इस पूरी कार्रवाई में पुलिस से हमने जब बात की, एसएसपी सिटी ने भी इस बात को कहा था कि इस पूरी कार्रवाई में जो भूमिका नजर आई जावेद मोहम्मद की वो काफी संदेह के तौर पर है, और चूंकि उसका जो सीधा इन्वॉल्वमेंट पाया पुलिस ने हिंसा को भड़काने में पाया है, सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से हिंसा फैलाने की बात हुई, और उसकी बेटी का भी यहां पर लिंक कहीं ना कहीं सामने आया था, जिसको लेकर के पुलिस ने इस आधार पर, चूंकि पुलिस का मानना है कि उनके पास में व्हाट्सएप की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि वो इस हिंसा को फैलाने में आरोपी है। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो प्रमुख तौर पर इस कार्रवाई की है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब बैठक ली थी 5 कालिदास मार्ग पे, इस बात को साफ कर दिया था कि जो भी आरोपी हैं और जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण और इन चीजों को लेकर के तुरंत कार्रवाई की जाए। कल कानपुर में बुलडोजर चला था और आज पूरी तैयारी है कि प्रयागराज में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर के एक सीधा संदेश दिया जाएगा कि समाज में और खासतौर पर दंगाइयों और पत्थरबाजी करने वालों पर किस तरीके सरकार की सख्ती होगी। और ये जो सुरक्षा का घेरा है पूरी इस गली में आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है कि अगर किसी भी तरीके का विरोध हो, क्योंकि अटाला के उस इलाके में जब जुमे की नमाज के बाद में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई थी, हालांकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्स थी, लेकिन बावजूद उसके वहां पर जिस तरीके के हालात पैदा हुए उसको रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल मंगाना पड़ा था। लेकिन आज चूंकि कार्रवाई की जा रही है, प्राधिकरण के जिस तरीके से यहाँ पर गिराया जाना है तो पहले से तैयारी कर ली गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के साथ जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद किया गया है, ताकि अगर कोई विरोध होता है स्थानीय स्तर पर, अगर लोग आते हैं उनके समर्थन में या अगर किसी भी तरह की स्थिति हो जो अराजक हो सकती है, जो समाज का सौहार्द खराब कर सके और सीधे तौर पर अगर इस कार्रवाई के आड़े आएगी तो उसको सीधे तरीके से रोका जाए। लगातार यहाँ पर अब सरगर्मी बढ़ चुकी है और किसी भी समय में यहाँ पर जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अभी तक घर से कोई बाहर नहीं निकला है, बाहर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अंदर से लोगों को बोलने को कहा गया है कि वो बाहर निकले, लेकिन फिलहाल अभी भी बाहर नहीं निकला है। ये साफ दिखाता है कि जिस कार्रवाई का दावा सरकार ने किया था उस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आज यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है और किसी समय में ये कार्रवाई पूरी तरीके से शुरू कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, इनफैक्ट परिवार वालों को ये बोला गया था कि 11 बजे तक अब 12 जून में प्रॉपर्टी जो है घर को वेकेट कर दे, लेकिन वो किया नहीं गया है। क्या ये बता सकते हैं कि घर के अंदर कौन है इस समय, क्योंकि उनकी वाइफ भी इस केस में अक्यूज बताई गई हैं? देखिए बिल्कुल, कल हम जब यहाँ पर पहुंचे थे, हमने शाम को यहाँ पर बातचीत की थी, तो उस समय घर में कुछ लोग मौजूद थे और अब जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ये जो घर है, ये जो मकान है 25, 50, 60 फीट इसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बना हुआ है और इसकी जो परमिशन नहीं ली गई है प्रयागराज विकास प्राधिकरण से, भूतल और प्रथम तल यानी कि दोनों फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, दोनों को गिराया जाएगा, दोनों की अनुमति नहीं है और उसको लेकर के ये बात कही गई है। परिवार की तरफ से कोई सामने नहीं आया है। सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, हमने भी कोशिश की कि घर के अंदर या कोई बाहर आए या किसी तरीके से बातचीत की जाए, लेकिन वो संभव ना हो सका क्योंकि किसी ने भी बाहर ना आने की जहमत उठाई। और अभी तक आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, एसपी सिटी भी यहाँ पर मौजूद है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है अगर कुछ समय में घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा तो पुलिस बिल्कुल समय गवाए बगैर घर का दरवाजा तोड़ के अंदर जाएगी और लोगों को बाहर निकालेगी और उसके बाद में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है उसको तेजी लाई जाएगी। ये आप मकान देखिए, सामने की हमने आपको दृश्य दिखाया और इसकी चौड़ाई देखिए मकान की, ये पीछे तक फैला हुआ है। 25 बाई 60 यानी 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा की ये जगह है जिस पर ये मकान बना हुआ है। और अगर फिलहाल तौर पर अगर हम आपको दिखाएं तो पूरे तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो है स्थिति ऐसी है कि पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। आपको महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर दिखाई देंगी क्योंकि अगर परिवार के लोग हैं तो महिलाएं भी होंगी। अगर महिला विरोध करने आती हैं तो उससे इसको निपटने के लिए भी यहाँ पर भारी तादाद में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यानी कि जो एक्शन की बात हो रही थी बार बार, और कल का कड़ा संदेश कानपुर की कार्रवाई के बाद प्रयागराज की इस कार्रवाई से एक और संदेश आएगा कि कैसे। और अब मैं आपको दिखाता हूं, बुलडोजर यहां पर आ चुका है, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बुलडोजर आ चुका है। यानी कि अब किसी भी समय में इस कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। जो बात कही जा रही थी अपराधियों के खिलाफ और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, वो बुलडोजर यहां पर आ गया है और आप देख सकते हैं
किस तरीके से अब ये बुलडोजर की यहाँ पर मौजूदगी हो गई है। ये बुलडोजर जो कि इस मकान को ढाएगा, इस तौर पर जो सीधे तौर पर सरकार ने जिस बात की बात कही थी कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई के लिए यहाँ पर ये बुलडोजर आ गया है। और आप देखेंगे किस तरीके से इस तैयारी को, मुकम्मल तैयारी पूरी की गई है। इस बुलडोजर के जरिए यहाँ पर जो है ये ढाया जाना है और पूरी तैयारी है। यहाँ पर एसपी सिटी यहाँ पर लगातार जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यहाँ जो लोग इकट्ठे हो गए हैं उनको कहा जा रहा है कि वो यहाँ से बाहर जाएं, ये जगह खाली कर दें, क्योंकि वाजिब सी बात है जब कार्रवाई होगी ये मकान गिराया जाएगा, मलबा गिरेगा, तो यहाँ पर कोई स्थिति खराब ना हो, इसीलिए इस चीज़ को कहा जा रहा है। लेकिन बार बार साफ तौर पर अपराधियों के खिलाफ जिस कार्रवाई के कड़े रवैये की तस्दीक की गई, कानपुर, सहारनपुर और उसके पहले जिस तरीके से सीधे तौर पर एक संदेश दिया गया, उसी संदेश की तस्वीर आज यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अब बुलडोजर की मौजूदगी है, यानी कि अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, किसी भी समय इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। और चूंकि घर के बाहर अभी भी कोई नहीं निकला है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ समय में जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। चूंकि अंदर से गेट बंद है और अभी तक बाहर कोई नहीं निकला है, तो इससे ये लगता है कि यहाँ पर पहले इस जगह को खाली कराया जाना है। अब चूंकि सुबह से हमने देखा कि स्थिति ऐसी थी कि कोई घर से बाहर नहीं निकला है, तो उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई विरोध होता है, अगर विरोध के कोई स्वर होंगे, विरोध की कोई तस्वीर दिखाई देगी, तो उससे निपटने की तैयारी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं है जब यहाँ पर ये कार्रवाई को किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखें किस तरीके से लगातार खाली कराया जा रहा है। बोला जा रहा है कि लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को भी हटाया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि जगह को खाली कर दे, यानी कि अब एक्शन होगा। और उस एक्शन में सीधे तौर पर प्रयागराज की हिंसा को भड़काने के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पे ये कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। These are visuals on your screens from the drama that is ongoing right now, right outside the house of Javed Mohammed, the key accused in this case. The police says he's the mastermind of the violence that took place in Prayagraj, that he effectively used social media and the internet to incite violence and tensions in Prayagraj, in which we saw stone pelting also after the Friday prayers. The police says strict action will be taken. The police has given a notice, and we'll in fact put those pictures out as well, asking the family members of Javed Mohammed to vacate the premises by 11 o'clock today. Abhishek is with us. Abhishek is telling us that that has not been adhered to, which means that there are people inside that house right now. But the bulldozer has come in. The bulldozers will not be waiting, is what Abhishek is telling us. And there is heavy police deployment, as you can see from these pictures. These are exclusive pictures from right outside Javed Mohammed's house in Prayagraj that we're getting for our viewers. A bulldozer action. We saw similar action take place against another accused in the Kanpur riots case as well. Similar action being taken place, to take place in fact in Prayagraj. I'm going to go across to Abhishek. We'll just go back to Abhishek, in fact. But these are pictures that he's sending us from Prayagraj in Uttar Pradesh, where there is heavy police bandobast right now that you can see right outside the house of Javed Mohammed, the mastermind of the Prayagraj violence, the stone pelting. He's incited the Muslims living in this area to pick up stones, to indulge in violence, to clash with the police, is what the police is saying. And that he's the mastermind of the tensions that took place in Prayagraj. Warnings have been issued to the family members, saying that parts of this house are in fact illegal and that they will be razed. So they have to vacate this by 11 o'clock today. The family members of Javed Mohammed continue to be at their house, and it's locked from the inside, is what Abhishek was telling us. But the bulldozers are all set to roll in, as we've seen in those pictures. Abhishek sent us this report a few moments earlier. Let's go straight to that. उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने की बात कर रही थी। कल मुख्यमंत्री ने कड़ा निर्देश दिया था कि बिना वक्त गवाए इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, और प्रयागराज की मुख्य हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर यहां पर बुलडोजर आ चुका है। एसपी सिटी यहां मौजूद है, इस एरिया को खाली करा रहे हैं ताकि इस कार्रवाई को शुरू किया जाए।
लगातार दरवाजे से बार बार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसे खाली किया जाए, लेकिन अभी तक घर से कोई नहीं निकला है। यानी कि पुलिस अब पूरी तैयारी में है, फोर्स पूरी तैयारी में है कि अगर कोई अभी कुछ समय में बाहर नहीं निकलता है तो दरवाजा तोड़ के अंदर जाया जाएगा और इस मकान को खाली करा करके अंजाम इस पूरी कार्रवाई को दिया जाएगा। सुबह से यहाँ पर जब नोटिस चस्पा किया उसके बाद से हमारी मौजूदगी थी, लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देखेंगे, भारी तादाद में, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मंगाई गई हैं ताकि अगर महिलाओं की तरफ से कोई विरोध होता है और स्थानीय तरफ से कोई विरोध हो, क्योंकि अटाला के क्षेत्र में जब जुमे की नमाज के बाद में जिस तरीके की हिंसा पनपी थी उसके पीछे बाद में फोर्स बढ़ाएगी। लेकिन अभी एहतियात के तौर पर पहले ही इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को बुला लिया गया है, यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना की संभावना में सीधे तौर पर कार्रवाई की जाए। अब ज्यादा समय नहीं है राजीव, जब यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, कुछ ही मिनटों की बात है। अगर इस घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा तो पुलिस बिना वक्त गवाए दरवाजे को तोड़ के अंदर जाएगी और सीधे तौर पर इस घर को खाली कराएगी और अगर किसी भी तरह का विरोध होता है तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं और लगातार यहाँ पर बुलडोजर की मौजूदगी हो गई है। यानी कि अब ज्यादा देर नहीं है जब ये एक्शन शुरू होगा और प्रयागराज के आरोपी के खिलाफ यहाँ पर घर ढहा करके संदेश देने की कवायद शुरू की जाएगी। जी Abhishek getting us those details from Prayagraj, where there is heavy police bandobast right outside the house of accused mastermind of the rioting in Prayagraj. That's what the police says. He's behind bars right now. There's Javed Mohammed and his house, where there are his family members right now inside. They have in fact been asked to vacate the premises, but they haven't, is what we've been given to understand. कोशिश की, कोई संपर्क नहीं, दरवाजा सुबह से बंद है और अभी तक घर के बाहर से कोई नहीं निकला है। अगर यहाँ पर देखा जा रहा है, अगर क्योंकि समय दिया गया था और बताया जा रहा है कि कुछ तैयारी शायद अंदर पहले ही कर ली गई, क्योंकि नोटिस चस्पा होने के पहले भी इस बात की जानकारी थी कि अब ये बुलडोजर चलेगा और एक्शन होगा। तो अब देखना होगा कि परिवार का क्या रुख है, क्योंकि अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है और पुलिस एसपी सिटी जो यहाँ मौजूद है वो यहाँ पर बार बार खाली करा रहे हैं। यानी कि इस जगह को खाली कराने का मतलब यही है कि जो एक्शन होगा उस एक्शन में कहीं ना कहीं अब तनाव हो सकता है और ऐसे में इस जगह को खाली करा करके, ये देखिए बुलडोजर चल पड़ा है। बुलडोजर ने अपनी रफ्तार पकड़ना यहाँ शुरू कर दी है, अब यहाँ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि इस गेट को गिरा करके कहीं ना कहीं इस कार्रवाई की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर अब शुरू की जा रही है और ये बुलडोजर जो है वो घर की तरफ बढ़ रहा है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, दरवाजा तोड़ने की यहाँ पर कवायद शुरू हो गई है, बाउंड्री को गिराया जाएगा और ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। सीधा संदेश, सीधा यहाँ पर एक तरीके से जो दावा सरकार ने किया था कि अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी और जो लोग इसमें पाए जाएंगे उनकी कमर तोड़ी जाएगी, और कमर तोड़ी जा रही है जिस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके जिस तरीके के मकान हैं उनको ढहा करके। और ये देखिए बुलडोजर की पहली मार यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पर सीधे तौर पर देखी जा रही है और इस गेट को ढहा दिया गया है। ये गेट जो है एक ही झटके में यहाँ पर गिरा है और आप देखिए किस तरीके से एक्शन हो रहा है। योगी सरकार ने यहाँ पर जावेद मोहम्मद के खिलाफ एक्शन किया है और आप देखेंगे तस्वीरों में, यानी कि अब समय नहीं दिया गया और यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो गेट तोड़ करके कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कहा गया था पहले भी, कानपुर में जिस तरीके की तस्वीर आई, सहारनपुर में और अब प्रयागराज में जिस तरीके की हिंसा भड़की थी, बावजूद इसके कि किस तरीके का इंतजाम किया गया था और यहाँ पर जो है अब इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश दिया जा रहा है। अब तक 91 गिरफ्तारी हो चुकी है और जावेद मोहम्मद जो कि इसका मास्टरमाइंड बताया गया है, हिंसा को भड़काने का आरोपी है, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बना करके सर्कुलेशन किया गया, उसके खिलाफ ये कार्रवाई जो है अब यहाँ पर तेज कर दी गई है। पुलिस अपना काम कर रही है, यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है जो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि कैसे अपराधियों के खिलाफ ये जो है वो एक्शन बदस्तूर किया जाएगा यहाँ पर। और आप देखिए किस तरीके से रोका जा रहा है क्योंकि आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पूरे तरीके से जो है इस बात की तैयारी हो रही है कि कैसे यहाँ पर जो है इस पूरी व्यवस्था को बनाया जाए। लेकिन आज के इस तस्वीर के जरिए, आज की इस कार्रवाई के जरिए ये बात साफ हो जाती है कि कैसे बुलडोजर के जरिए अवैध संपत्ति और साफ तौर पर अपराधियों को लेकर के जो बात सरकार ने कही थी उसको
पूरा करने की तैयारी में ये कहीं ना कहीं हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो तस्वीर है वो आज यही है कि ये देखिए एक और तरीके से यहाँ पर बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि बात कही गई थी, अब यहाँ पर एक्शन हो रहा है। 11 बजे तक का समय दिया गया था, समय को नहीं देखा गया, कोई यहाँ पर खुद से ना तो कोई बाहर निकला, ना इस प्रॉपर्टी को खाली किया गया। लेकिन अब जिस तरीके से बुलडोजर ने अपना रुख जो है इस दरवाजे पर किया, पहला दरवाजा तोड़ दिया है और अब अंदर की तरफ जा रहा है। यानी कि ये जो कार्रवाई है वो अब एक्शन में आ गई है और जो दावा किया गया था प्रशासन की तरफ से अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने का, उसको पूरी तरीके से अब शुरू कर दिया गया है। एक बड़ा संदेश है। और कल की जो मीटिंग थी, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था इस बात को कि एक कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। जो कार्रवाई, जो प्रयागराज में हालात खराब हुए वो खराब नहीं होने चाहिए थे। और आप देखिए आप किस तरीके से पुलिस बल जो है वो अंदर पहुंचा है, अंदर गेट के पास पहुंचा है। यानी कि अंदर जाएगा और लोगों को, अगर अंदर कोई मौजूद है क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद है, तो उनको जो है यहाँ पर बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद में इसके पहले तल यानी भूतल और प्रथम तल दोनों को ध्वस्त करने का जो आदेश है उसका पालन होगा। यानी कि जो एक्शन कहा गया वैसा करा जा रहा है सीधे तौर पर राजीव। और आप देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या बल मौजूद है, पुलिस को भी अंदेशा था क्योंकि पिछली हिंसा जब भड़की थी प्रयागराज में तो वहां पर दोबारा फोर्स बुलानी पड़ी थी। तो अब पहले से एहतियात बरतते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। बुलडोजर की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। ये देखिए किस तरीके से बुलडोजर जो है वो एक एक करके अब बाउंड्री को तोड़ चुका है, गेट को तोड़ चुका है और अब अंदर के जरिए यहाँ लोग अगर जो मौजूद है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और बिल्कुल भी समय यहाँ पे गवाया नहीं जा रहा क्योंकि 11 बजे का समय था वो पूरा हो चुका है। और अब जो है सीधे तौर पर इस कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश सरकार ने दिया है। जावेद मोहम्मद जो कि मुख्य आरोपी बताया गया है, जो कि इस पूरी साजिश के लिए जिम्मेदार कहा गया है, उसके घर को गिरा करके 20 से 22 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है। इस मकान को गिरा करके ये कहा जा रहा है कि अवैध तौर पे बनाया गया, इसकी अनुमति नहीं थी। और इसके जरिए सीधे तौर पर कड़ा संदेश कि अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा और वो बुलडोजर अपनी कार्रवाई यहाँ पे लगातार कर रहा है। जी राजीव। Abhishek Mishra getting us all of those details where the bulldozers have started to roll in, destroying the front portion of the house. Already the house belongs to Javed Mohammed, the key accused in the Prayagraj violence case. He's the mastermind is what the police in Prayagraj are saying right now behind bars. Now a warning had been given as well to Javed Mohammed's family members, saying that portions of the house are illegal and that it's going to be razed down by bulldozers and that they should be vacating the premises by 11 o'clock today, which they failed to do. Essentially, the bulldozer has razed in, as you can see in these pictures, and as Abhishek has been telling us, but the family members of Javed Mohammed continue to be inside. Over to Abhishek once again. क्योंकि जिस तरीके की मोहलत दी गई थी उस मोहलत का अनुपालन नहीं किया गया। 11 बजे का समय था, उससे कई ज़्यादा समय हो चुका है। और आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे यहाँ पर जो है इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस बल भारी संख्या में। देखिए सीधा मैसेज है और मैसेज यही था कि अगर अपराधी अपराध करेगा और उसको सिर्फ जेल में डालना ही नहीं बल्कि उसकी कमर तोड़ने की बात यहाँ पर कही गई थी। और कमर कैसे तोड़ी जाएगी वो यही है कि उसकी संपत्तियों पर, जो अवैध संपत्ति है उस पर जो कब्जे हैं या जिस तरीके की संपत्ति है उसको ढहाया जाए ताकि वो पूरी तरीके से कमजोर हो। और वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। सामने आप देखेंगे फिर से मेन दरवाजे की तरफ हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर अभी भी पुलिस बल मौजूद है। बार बार कह रहा है कि अगर कोई अंदर है तो बाहर आए, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर कोई बाहर आएगा तो अभी ये कार्रवाई हो। मेन गेट को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और अब अंदर की तरफ में कुछ ही देर में, अगर कुछ समय में ये कार्रवाई में अगर सहयोग नहीं होता है अंदर से, तो जैसे इस मेन गेट को ढाया गया है वैसे ही अब अंदर के दरवाजे को भी तोड़ करके कहीं ना कहीं पुलिस बल अंदर पहुंचेगा और इस कार्रवाई को अंजाम देगा। बड़ा संदेश है राजीव, लगातार कहा गया क्योंकि जो हिंसा पनपी, जिस कदर हालात बेकाबू हुए थे प्रयागराज में, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को निशाना बनाया गया और सीधे तौर पर यहाँ पर यह भी कहा गया कि आप जो नाबालिग बच्चे थे उनका इस्तेमाल करके सीधे तौर पर शांति व्यवस्था और माहौल को खराब करने की कोशिश की गई थी। उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करके ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं यही संदेश होगा और इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तस्वीर कानपुर के बाद
सहारनपुर के बाद अब प्रयागराज में दिखाई दे रही है और जावेद मोहम्मद के घर पर अब पूरी एक्शन की तैयारी है और ये एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर अपना काम लगातार यहाँ पर कर रहा है। जी, Bulldozers have rolled in at the residence of Javed Mohammed, the key accused, the front portion of the house. As you can see in these pictures, stands raised by the bulldozer as the action was promised by the authorities, saying that portions of the house are illegal. But this happens to be the house of Javed Mohammed. The police say is the mastermind of the violence that took place in Prayagraj on Friday after the Jummah prayers. He was the one to incite violence, asking Muslims to come together and protest, shout slogans, also indulge in violence with the police, clash with them, and also pelt stones, pictures of which we had put out for our viewers. Now we saw similar action in Kanpur, where the house of another key accused in the Kanpur riots has been razed in Saharanpur, and today in Prayagraj. At the house of Javed Mohammed, the mastermind of the rioting in Prayagraj. These pictures are exclusive on your screens from Prayagraj, where the house, at least the front portion of it, has been razed down by the bulldozer that has been rolled in by the authorities. To tell our viewers, the family members of Javed Mohammed continue to be inside that house. They were asked to vacate, but they did not. यहाँ पर जो है अंदर के गेट को कहीं ना कहीं तोड़ने की तैयारी है। पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है सुरक्षा की बात कर रहा है। लेकिन एक चीज और साफ यहाँ पर नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो सुरक्षा का घेरा बनाया गया, और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसीलिए किए गए, क्योंकि अगर कोई अप्रिय स्थिति होती है, कोई ऐसी घटना होती है जहां पर बड़ी तादाद में इस पुलिस बल को उपयोग करना पड़े, तो उसको किया जा सके। अब ये क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि हमें लगता है यहाँ पर जो अब आगे की कार्रवाई उसको किया जाएगा, मकान को गिराने की कार्रवाई को, इसीलिए यहाँ पर इस एरिया को खाली कराया जा रहा है। लेकिन इस पूरे ध्वस्तीकरण और इस पूरे संदेश से बात एक बार बार साफ हो रही है राजीव, क्योंकि बार बार कहा गया था कि अगर इस तरीके के असामाजिक तत्व होंगे तो वो सीधे तौर पर इस कार्रवाई को करेंगे। और ये देखिए एक और बुलडोजर आया है, हम आपको दिखाते हैं। पहले बुलडोजर ने अपने काम किया और उसके बाद में अभी दूसरा बुलडोजर, एक और बुलडोजर यहाँ पर आया है, यानी कि ये दो बुलडोजर यहाँ पर है जिनके जरिए ये एक्शन किया जाएगा। और उधर देखिए फिर से एक्शन शुरू हो चुका है, बुलडोजर ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। अब दीवार को गिरा रहे हैं, बाउंड्री दीवार को गिरा रहे हैं, और दूसरा बुलडोजर भी आ गया है, यानी कि दोनों बुलडोजर अब एक साथ जो है वार करेंगे इस संपत्ति पर और इसे ढहाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जाएगा। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। दो बुलडोजर अब आ गए हैं और आप देखेंगे तस्वीरों में कैसे समय दिया गया, बार बार कहा गया, लेकिन अब कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो उस स्थिति में अब जो है यहाँ पर बुलडोजर अब बाउंड्री दीवार को तोड़ रहा है। और ये देखिए दूसरा बुलडोजर भी अब एक्शन में आया है। उम्मीद की जा रही है कि ये भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्शन में आएगा और सीधे तौर पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको पूरी तरीके से मुकम्मल में लाया जाएगा। यानी कि योगी सरकार का दावा और एक बार फिर से यहाँ पर अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको करने की बात जो थी वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। एक्शन लगातार जारी है राजीव, दोनों यहाँ पर बुलडोजर आ चुके हैं और आप देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इस कार्रवाई को किया जा रहा है और कैसे आज प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी के इस घर को गिरा के एक संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी अपराधी की संपत्ति, अवैध संपत्ति को नहीं बख्शेंगे। और कमर तोड़ने का जो दावा सरकार ने किया था उसकी तस्वीर आज प्रयागराज से दिखाई दे रही है। जी, Pictures from Prayagraj. Outside Javed Mohammed's house, questions are being raised as to why the bulldozer is also being rolled in. Why can't the law take its own course? He's an accused in the Prayagraj violence, and law should be taking its own course, is what many argue. But the UP administration, the government has made it clear and has spoken about this several times in the past that they will take strictest action possible. Several times, not once, twice, but several times in the past, houses of many accused have been razed by bulldozers. It's a message that the UP administration, the government, is trying to send to those indulging in rioting. And that is evident from what the Chief Minister also said, and also from what happened in Kanpur, where the house of key accused of riots in Kanpur on the 3rd of June was also razed. Similar action in Saharanpur, and today in Prayagraj. This is the house
on the left side of your screen. Of the main accused, the mastermind is what Prayagraj police says in the clashes that took place in Prayagraj on Friday. की रफ्तार है वो तेज है, 10 मिनट का ही समय हुआ है और अभी इतनी तक कार्रवाई कर ली गई है और एक एक करके पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, वो अंदर घुस रहे हैं। यानी कि जिस रफ्तार से इस को ढहाने की बात की गई थी वो यहाँ नजर आ रही है। देखिए पहला कमरा है, ये बाहर का कमरा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे को की दीवार को तोड़ा गया है, जो खिड़की नुमा यहाँ पर जो खिड़की बनी हुई थी, जो चौखट थी, उस पूरी चौखट को यहाँ पर तोड़ा गया और तोड़ने के बाद में इस मकान के अंदर अब पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस फोर्स है, वो अंदर पहुंच रहा है। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर अब अंदर घुसने की तैयारी है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आज तक पे, और ये बाहर का जो कमरा है, बाहर का जो कमरा है वो देखिए, वो यहाँ पर खाली नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये जो है वो मकान ध्वस्तीकरण किया जाएगा। यानी कि कमरा आप देखेंगे खाली है, कमरे में कोई सामान नहीं है, एक आध फर्नीचर पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी चीजों को हटा लिया गया। यानी कि अंदेशा था और मुझे लगता है इसीलिए यहाँ पर जो है इस तरीके से कार्रवाई की गई है। अंदर जो वीडियोग्राफी भी की जा रही है, जिस तरीके से ये डेमोलिशन हुआ है उसको लेकर के अंदर 2 वीडियोग्राफर भी हैं, वो वीडियोग्राफी कर रहे हैं और पुलिस की जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है वो अंदर घुस गई है। यानी कि अंदर अगर कोई भी है उसे बाहर निकाल करके यहाँ पर ये कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके की इस मकान की स्थिति, उससे लगता है कि अब कुछ ही समय में इस रफ्तार से इस मकान को गिराने का काम जो है उसे तेज किया जाएगा। और सीधे तौर पर ये तस्वीर गवाह है राजीव कि कैसे अवैध तौर पर इस निर्माण, चूंकि भूतल और प्रथम तल दोनों को की परमिशन नहीं ली गई, दोनों का मानचित्र है वो पास नहीं है, ये बात कही गई है प्राधिकरण की तरफ से, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से। और उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई जो है बदस्तूर जारी है और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अब एक्शन शुरू हो चुका है, दोनों बुलडोजर यहाँ पे हैं, इस मकान को गिरा के कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को पूरा आज यहाँ प्रशासन करेगा। जी Abhishek getting us all of those details. These are pictures from Prayagraj in UP where action has started. Bulldozers have rolled in at Javed Mohammad's house, the mastermind of the Prayagraj violence. The questions are being raised about the need to use these bulldozers when he is only an accused in this case. Also, what is the need to link the illegal construction with his role in the rioting? The message is loud and clear that the UP administration, the Yogi Adityanath government, wants to send out that there is going to be strictest action possible when it comes to those who are indulging in violence and taking action against them. Like in this case, where Javed Mohammed was warned, and also as far as raising his house is concerned, notices had been given saying that portions of his house are illegal and that it's going to be raised down. But it is no coincidence. It's happened in Kanpur as well, also in Saharanpur, where the main accused in the rioting have in fact been, their houses in fact have been raised down using bulldozers. Anila Singh of the BJP is with us. Anila Singh, questions are also being raised. While take the strictest action possible against rioters, but why link it to the illegal constructions and bring in the bulldozers? What's the message that the UP administration, the government want to send here? See, if you want to ask me what is the message of Yogi Adityanath ji as a chief minister, message is very, very clear that there is no place of gundagardi, there is no place for rioting, and there is absolutely no place for anything illegally done, whether it is construction, encroachment, or anything illegal. So message is very clear. If this person who is alleged in violence which happened in Prayagraj, and if illegal construction by him is getting demolished by Allahabad Development Authority, then we should not correlate both the things. Authority is doing its job, and agencies who are investigating violence, they are doing their job. So no. Both these actions not be different from each other. Sure, go ahead and bulldoze after notices are given like you've done in this case. But it does appear that there is a link that the government is trying to draw. It's happened in the case of the accused in the Kanpur violence also, in Saharanpur, and now in Prayagraj. The sympathies are with those people who do illegal work,
who do illegal construction, who encroach public land. So your sympathies are with the. With No, my those. sympathies are with I no think one. Madam Anila Singh, Madam Anila Singh, these are questions that many people are raising. Why link both these actions? Why link both of these let illegal them- activities? let them raise the Please do not, question. please do not make this personal. My sympathies are with no one. I'm just asking this question because people are asking these questions. Listen, I'm not Yes. getting personal at all. You are a journalist of India today. Yes. You have raised a question Yes, go ahead. about Yogi Adityanath's government, and I'm responding to that. Yes, go ahead. All right. So simply, when I say that, do you sympathize with the person who does something illegal? Then it is nothing personal about you. It is as a journalist from India today. Okay. The Anila Singh, authorities, I if also they want are to ask taking you. action Yes. against anything illegal, I think that should be appreciated rather standing with a person who has done something illegal. Well, absolutely. In fact, as far as this action is concerned, it should be also extended to those people who are not indulging in rioting. My question to you is about the investigations in this case. The man who's behind bars is an accused in this case. The trial is also going to follow? Anila Singh? Absolutely, and what authority is doing in today's date, that is under the guidelines of Supreme Court. So what authorities is doing, that is not illegal. What this person has done, that is illegal. Also, there have been concerns. Anila Singh, just be with us. I'll just tell our viewers about these live pictures right now that have just come in of the front portion of the house, as you can see, that is being brought down by the bulldozers. These are pictures live on your screen where there are family members of Javed Mohammed inside. They were asked, remember, to vacate the house, but they did not do it. So they continue to be inside the house, and there's heavy police bandobast. It does appear that the bulldozer now is going to raise the front portion of what appears to be a balcony. In fact, I'll try to go back to Abhishek for more details on that. But Anila Singh also continues to be with us. This is something that we'll continue to see in days and weeks to come. As far as law and order in UP is concerned, Anila Singh, this bulldozer action that we've been seeing for days together here. All right, these are pictures from Javed Mohammed's house in Prayagraj, in Uttar Pradesh. He's the mastermind of what the police says, the violence that broke out in Prayagraj. Well, this case is still in fact progressing, and he stands as an accused right now. While link both of these developments of him having illegal constructions and of him being an accused, but the larger message it appears that the Yogi administration is trying to send out is that all possible action will be taken against those who are inciting violence. And this includes many of these people who have illegal constructions, like you've seen in the case of the main accused in the Kanpur riots, where his house was also brought down in Kanpur just a day ago.